Greetings to you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको हमारे प्रभु महान यीशुआ का नाम में अभिवादन करता हूँ. We thank God for His faithfulness throughout this year 2025. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनका विश्वास योग्यता के लिए कि ये 2025 साल भर में we are in the last day of 2025, the last day of the year. आज हम सब ये 2025 साल का आखिरी दिन में हैं और साल का आखिरी दिन में हम आ पहुंचे हैं. On this day, we would like to give thanks to God because it's not we who cross throughout this year and come to the last day of the year. हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना जरूरी है क्योंकि हमारे बल से हमारे शक्ति से नहीं कि हम इस साल को हम पार करके आज आखिरी दिन तक हम देख पाए हैं. It's only by the grace of God and His goodness and His mercy. केवल परमेश्वर का करुणा और दया और उनका भलाई के कारण आज हम इस आखिरी दिन को देख पा रहे हैं. So this morning, let us not forget what God has done throughout this year for you and me. आज ये सुबह समय में परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया हम वो चीज़ों को नहीं भूलेंगे. So by remembering all the things that He has done for us, let us give thanks to Him with all our hearts. उनका सारा उपकार कामों को, उनका भलाई कामों को जो हमारे जीवन में किया है, उन सारे कामों को याद स्मरण करते हुए संपूर्ण दिल से, सारा मन से हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. So I would like to read the scripture this morning as we give thanks to the Lord. आज ये सुबह समय में परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहा है तो उसके लिए मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता हूँ. Psalms 103 verse 1, भजन संहिता 103 का 1. It is written like this, ऐसे लिखा है, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहा. हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को ना भूलना. Praise the Lord. We can't forget whatever God has done for us throughout this year. हम भूल नहीं सकते परमेश्वर ने जो कुछ आप और मेरे लिए किया है. And His Holy Spirit has been with us throughout this year to sustain us and to support us and to guide us and to strengthen us. साल भर उनका पवित्र आत्मा हमारे साथ रहा, हमें अगुवाई किया और हमें बल दिया, हमें मदद किया और सहायता किया. So we can't forget all those good things that He has done for us. इसलिए हम उन सारे उपकार कार्य जो हमारे लिए किया है हम भूल नहीं सकता है. So today as we are in the last day of this year, तो आज जैसा आज हम सब ये साल का आखिरी दिन में हैं, so let us use this day, let us spend this day to give thanks to the Lord. इसलिए आज का ये दिन जो है हम परमेश्वर को धन्यवाद देने में उपयोग करेंगे. Let us give thanks to the Lord from morning till the last hour of this last day of 2025. इसलिए आज सुबह समय से लेकर आखिरी घड़ी तक ये साल का 2025 का हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. Praise the Lord. And I want to tell you that maybe in this year there was a time that you supposed to die. Your life was about to finish. The enemy, the devil tried to take your life. हो सकता है ये साल में कभी में आप मरना था. शैतान ने, दुश्मन ने, दुष्ट आत्मा ने आपको मरने का योजना किया था. But the Lord has saved you and protect you according to Psalm 91. परंतु परमेश्वर ने आपको बचाया
भजन संहिता 91 वचन का अनुसार He has kept for you His angels to charge over you, so they have protected you and you are still here today. उन्होंने अपना स्वर्गदूतों को आपका निमित्त आपके लिए दिया और स्वर्गदूतों ने आपको रक्षा किया, इसलिए आज ये साल का आखिरी दिन को भी आप देख पा रहे हैं. Maybe you could have taken a wrong step and been far away from God, but because of the leading and the guidance of the Holy Spirit, you are still here today, right close to God and thanking God for what He has done for you throughout this year. आप हो सकता है आप गलत रास्ता लेकर परमेश्वर से दूर होना था, लेकिन तो भी पवित्र आत्मा ने आपको अगुवाई किया, आपको चलाया, इसलिए आज तक परमेश्वर का साथ आप बना रहकर आज इस आखिरी दिन में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रहे हैं. So it is good things to do this, that to give thanks to the Lord. ये भला काम है कि जो हम परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद देने का. I want to tell you, Jesus is a good God. मैं आप सबको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह अच्छा प्रभु है. He is the good shepherd and He guide and care His sheep perfectly and wonderfully. वो अच्छा चरवाहा है, इसीलिए वो अपना भेड़ों को असल प्रकार से संभालता है और सही तरीके से संभालता है. So you are in the hands of the good shepherd. असल चरवाहा का हाथ में आप है. So you don't have to worry about even the new year which is coming. इसलिए आपको नया साल जो आ रहा है उसके लिए भी चिंता करने का जरूरत नहीं है. Just trust in Him and just be faithful to Him and walk with Him and He will take a good care of you. सिर्फ आप उनका साथ चलना, विश्वास योग्य रहना और उनका योजना का अनुसार चलना, उनका इच्छा को पूरा करते हुए उनका संग संग चलना, और देखो वो आपको अच्छे तरीके से संभालेगा. And He will bless a new year for you and you will be happy and prosperous. और परमेश्वर नया साल को आपके लिए आशीष देगा और बहुत उन्नति करेगा और आपका जीवन सुंदर होगा, सफलता होगा और आप धन्य हो जाएंगे. So dear friends, I want to tell you, do not follow the systems of the world, but follow what Jesus, the Lord Jesus is teaching you to do. मैं आप सबसे प्रिय भाई बहनों ये बताना चाहता हूँ, संसार का कानून, संसार का नियम को पालन ना करते हुए परमेश्वर का वो प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं को, वचनों को, कानून को फॉलो करते हुए चले, आपका भला होगा और बहुत आशीषित होंगे. And Jesus is there for you always. प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके लिए है. And He came from heaven to this earth and He born in Bethlehem in a manger just to be with you throughout the days of your life. वो अपना स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया और बेथलेहम में और बेथलेहम में जन्म होकर, चरनी में जन्म होकर आपको केवल साथ देने के लिए आया है. तो वो हमेशा आपका साथ है. And just trust in Him and just be with Jesus all the time in your life. हमेशा उसी का ऊपर भरोसा रखकर, उसी का साथ रहकर, यीशुआ का साथ रहो और हमेशा आप सुरक्षित रहेंगे. Praise the Lord, hallelujah. So as the scripture says, draw near to me, draw near to God and He will draw near to you. और परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है, परमेश्वर का निकट आओ और वो भी तुम्हारा निकट आएगा. So these days and in the coming new years, just always draw very near to God and God will be always near to you. और जैसे लिखा है परमेश्वर का निकट आओ और वो भी तुम्हारा निकट आएगा, तो इस नया साल में आप परमेश्वर का निकट आओ, हमेशा परमेश्वर का निकट रहना और परमेश्वर भी हमेशा आपका निकट रहेगा. Praise the Lord, hallelujah. And as it is written in the book of the Gospel according to John chapter 15, that He is the good vine and we are the branches. As long as we abide in Him and
we will bear much fruit. जैसा सुसमाचार यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, वो अच्छा दाखलता है और हम डालियां है। जब तक उस दाखलता के साथ हम बना रहेंगे, जुड़ा रहेंगे, हम बहुत फल फलेंगे। So my dear friends, I would like to request you and tell you, always abide in Jesus and your life will be fruitful. मेरा प्यारा भाई बहनों, मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह का साथ बना रहो और आप सबका जीवन फल भरित जीवन होगा और सफलता जीवन होगा। So let us give thanks to him in this last day of this year and have a big hope for the new year that God is going to bless us and prosper us. तो ये आखिरी दिन में हम, ये साल का आखिरी दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये समय बिताएंगे और साथ साथ में नया साल के लिए बड़ा आशा लेकर कि परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें उन्नति करेगा बोल के उसी आशा को लेकर हम नया साल का इंतजार करेंगे। एंड the new year is going to be a blessed year for all of you. और जो नया साल जो आ रहा है वो आप सबके लिए आशीषित साल होगा। So may God bless you all and I wish you all a very happy new year and prosperous new year in advance. और तो हम खुशी है और फिर से मैं आप सबको नया साल का शुभकामना और ये नया साल में आप सब धन्य और आशीषित और सफलता और उन्नति जरूर मिले। May God bless you all and see you all again next time. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और फिर अगला बार मिलेंगे। Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।